अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, क्या हाल है, कैसे हैं बेटे आप लोग। ओपन यू बायोलॉजी बुक, फर्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 16, फाइलम नंबर 7। बेटे आज हम स्टडी करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फाइलम नंबर 7, फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फाइलम आर्थ्रोपोडा, डाइवर्स ग्रुप सच एज इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, spiders, scorpions, and centipedes are included in this phylum. They are found in every type of habitat. Many of terrestrial members can also fly. They are triploblastic, bilateral, symmetrical protosomes, coelomates. Their coelom is reduced and present only around reproductive and excretory system. They have jointed appendages which are modified for specialized function, for example, running, crawling, swimming, capturing prey, respiration and reproduction, etc. In different arthropods, the jointed appendages around the mouth are modified in different way and form mouth part. The body is segmented. Some segments are fused to form specialized body region called tegmata. These include head, thorax, and abdomen. They have exoskeleton on cuticle which is secreted by epidermis of the body wall. It is made chiefly of chitin. In young arthropod, exoskeleton is shed from time to time. After shedding the exoskeleton, the animal grows at a faster rate and then resecrete new exoskeleton. This process is called ecdysis or molting. The process open type circulatory system. Most of the time blood flows in hemocoel which is derived from an embryonic cavity called blastocoel. Their blood is colorless as it is without hemoglobin and is called hemolymph. Most arthropod possesses a respiratory system that consists of air tubes called trachea. Main tracheal tubes open out through opening called spiracles. Aquatic arthropod respire through gills. Arthropods have tube-like digestive system. The alimentary canal is divided into different parts. The excretory system comprises of malphizian tubules. They are narrow tubules projected from the alimentary canal, attached at the junction of midgut and hindgut. The nitrogenous waste are excreted in the form of solid uric acid crystals. They have well-developed central nervous system with three fused pair of cerebral ganglia, brain in head. There is a double ventral nerve cord which has ventral ganglia in each segment. They have developed central nervous system with three fused pair of central ganglia, brain in the head. There is a double ventral nerve cord which has ventral ganglia in each segment. Smaller nerve arises from ventral ganglia in each segment. They have well-developed compound eyes and antenna. They can swim, crawl, or fly depending upon their habitat. They are unisexual. Important arthropods includes mosquitoes, butterfly, moth, wasp, beetle, grasshopper, crab, lobster, prawn, shrimp, crayfish, spider, tick, mite, scorpion, centipede, and millipede. मैंने जो टॉपिक अभी रीडिंग किया है बेटे, डैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम है। इट इज़ द बिगेस्ट फाइलम ऑफ ऑल द फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम। जितने फाइलम्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें से सबसे बड़ा फाइलम जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, किंगडम एनिमिलिया का। और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपके पास आता है फाइलम मोलस्का। ये बात आपने याद रखनी है। मैंने क्या कह दिया, द लार्जेस्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं बेटे वो सबसे ज़्यादा है। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, फाइलम मोलस्का है। क्लियर हो गया। ये डाइवर्स ग्रुप्स है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स आ रहे हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, स्पाइडर्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, सेंटीपीड्स हैं, ठीक है। और इनकी हैबिटेट भी डिफरेंट है। कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, कुछ जो हैं वो वाटर में रहते हैं, कुछ डैम प्लेसेस में रहते हैं। यानी कि जितना ये वास्ट है, जितना ये बड़ा फाइलम है, उतनी ही इसकी स्पीशीज़ हैं। और इनके जो हैबिटेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लाटिंग है। इनकी बॉडी को 3 लेयर्स हैं, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल है और क्या है,
सीलियोमेट्स हैं, ठीक है। इनकी सिलोम जो है वो फर्दर रिड्यूस हो जाती है। अभी तक जितने फाइलम में आप पढ़ के आए हो ना, उनकी सिलोम बड़ी होती है, लेकिन इनकी सिलोम जो है रिड्यूस हो जाएगी और सिर्फ रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेटे अराउंड जो है वो प्रेजेंट होती है। दे हैव जॉइंटेड, इनके जो अपेंडेजेस हैं वो क्या होते हैं, वो जॉइंटेड होते हैं, ठीक है। और विच आर मॉडिफाइड फॉर स्पेशलाइज फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया कि इनके जो अपेंडेजेस हैं वो क्या होते हैं, वो ज्वाइंट होते हैं जगह जगह से, ठीक है। फॉर स्पेशलाइज फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल वो स्पेशलाइज फंक्शन कौन कौन से हैं, वो हैं रनिंग है, क्रॉलिंग है, स्विमिंग है, कैप्चरिंग प्रे, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन। इन सब फंक्शंस के लिए इनके अपेंडेजेस क्या करते हैं, वो ज्वाइंटेड हो जाते हैं। क्लियर हो गया। इन डिफरेंट आर्थ्रोपोड जो इनके अपेंडिसेस हैं बेटे, मैंने आपको बताया कि माउथ में और डिफरेंट माउथ के पार्ट्स में भी जो है ये जॉइंट होकर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बॉडी इनकी सेगमेंटेड है और इनकी बॉडी जो है, इनके जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं वो फ्यूज़ होकर बॉडी के रीजन में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, टेगमेटा। क्या कहते हैं, टेगमेटा। मैंने क्या वर्ड बोला कि इनकी बॉडी के सेगमेंट जो हैं वो फ्यूज़ होकर स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेगमेटा कहते हैं, ठीक है। और टेगमेटा कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इनकी बॉडी को 3 मेन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। क्लियर हो गया। बॉडी को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, कौन कौन से, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन है या इनकी बॉडी के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर जो है क्यूटिकल को स्क्रीट कौन कर रहा है, एपिडर्मिस कर रहा है, ठीक है। और जो है एक्सोस्केलेटन फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिस तरह एनिमल्स की ग्रोथ होती है ना बेटे, फ्रॉम एग टू अडल्ट में, तो उनका एक्सोस्केलेटन बार बार शेड होता रहता है। शेड होने का मतलब होता है कि पुराना उतर जाता है, नया जो है वो ग्रो आ जाता है। इन एनिमल्स के अंदर ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन नहीं है, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बेटे फिजिकल चेंजेस हैं जो कि एग से लेकर अडल्ट तक होते हैं। इन चेंजेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म जो इनका डेवलप होता है वो अपने पेरेंट सेल की जैसा नहीं होता। यानी कि सपोज करो एक बटरफ्लाई है या डिफरेंट और मॉस्किटो है, ग्रास ऊपर है, ये तमाम के तमाम एनिमल्स क्या करते हैं, दे ले एग, ये एग देते हैं। एग से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा अडल्ट में कन्वर्ट होता है। यानी कि एग से अडल्ट एनिमल नहीं निकलता, बल्कि वो उसकी फिजिकल जो शेप है वो और तरह की होती है, फिर उसके बाद वो किसी और शेप में चेंज हो जाता है। यानी कि अडल्ट तक पहुंचने के लिए उसने बहुत सारी शेप्स जो हैं अपनी चेंज करनी होती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस भी 2 तरह की होती है, एक होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप की फिजिकल जो शेप्स हैं उनमें से गुजरता है, लेकिन इनकम्प्लीट में वो 1 या 2 शेप्स में से गुजरने के बाद जो है अडल्ट एनिमल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, अपनी एक्सोस्केलेटन जो है वो शेड करते हैं। फिर जो है अगले ही जो जब उनकी फिजिकल शेप होती है तो वो दोबारा एक्सोस्केलेटन क्रिएट उसकी होती है, फिर वो उसमें से भी निकल के दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। और ये एक्सोस्केलेटन जो है इनका बेटे फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है ये बॉडी से शेड हो जाता है और एनिमल ग्रो करता है और दोबारा रीसक्रीट कर लेता है क्या, एक्सोस्केलेटन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें इनका एक्सोस्केलेटन बार बार पुराना उतरना और जो नया एक्सोस्केलेटन उसका डेवलप होना या उसका बनना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मोल्टिंग। क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं या एक्डाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्डाइसिस या मोल्टिंग। क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं इनके डेवलपमेंट, यानी कि इनके सिस्टम किस तरह डेवलप हुए हैं। तो पहला जो सिस्टम इनके अंदर है वो कौन सा है बेटे, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप है। ब्लड जो है वो हीमोसील के अंदर जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। और जो है कहाँ से वो आ रहा होता है, बल्कि वो एम्ब्रियोनिक जो कि हो हीमोसील जो है ना, हीमोसील के अंदर ब्लड मैंने बताया कि वो मूव कर रहा होता है। और ये जो हीमोसील है ये कहाँ से बनी होती है, ये एक एम्ब्रियोनिक कैविटी है जो कि ब्लास्टोसील से जो है वो डेवलप होती है। कौन सी, हीमोसील। फिर क्या है कि इनका ब्लड जो है बेटे कलरलेस होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलेफ कहते हैं, कलरलेस है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है अब रिस्पायरेटरी सिस्टम भी डेवलप होना शुरू हो जाता है और इनका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ एयर ट्यूब्स। उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, ट्रैकिया कहते हैं। और जो ट्रैकियल ट्यूब्स हैं
ये छोटी छोटी ओपनिंग से ओपन हो रही होती हैं। उन ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्पायरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पायरल्स। आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। और जो इक्वेटिक है, मैंने आपको बताया था ना कि इनकी डिफरेंट हैबिटेट हैं, कोई टेरेस्ट्रियल है, कोई इक्वेटिक है। तो जो इक्वेटिक हैं वो किस तरह रिस्पायर करते हैं, दे रिस्पायर थ्रू गिल। जो टेरेस्ट्रियल हैं वो ट्रैकिया से रिस्पायर कर रहे हैं, लेकिन जो वाटर में रहते हैं वो किससे रिस्पायर करते हैं, गिल्स के जरिए करते हैं। आर्थ्रोपोड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक है। एलिमेंट्री कैनाल को डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अभी तक आप लोग जो पढ़ते आए हो ना फाइलम्स, बाकी फाइलम में हमने फ्लेम सेल पढ़े थे और नेफ्रिडिया पढ़े थे, लेकिन अब देख अगर यहाँ पे आप लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा पे आए हो तो यहाँ पे आके एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटे क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे एक नया ऑर्गन डेवलप हो गया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। यानी कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। और ये ट्यूब्स कहाँ से निकलती हैं, एलिमेंट्री कैनाल से निकलती हैं, और ये मिड गट और हाइंड गट पे जो है अटैच होती हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो इनका सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, जो फ्रॉम टाइम टू टाइम बॉडी से जो है रिलीज होता रहता है। किस फॉर्म में होता है बेटे, सॉलिड यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप होता है, जिसके अंदर 3 फ्यूज्ड पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया इन हेड होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वेंट्रल नर्व कोड जो है वो प्रेजेंट है, और जिसके उन हर सेगमेंट पे किसके, वेंट्रल नर्व कोड के हर सेगमेंट पे वेंट्रल गैंग्लिया प्रेजेंट है। ये आपने बात याद रखनी है, जिनमें से छोटी छोटी नर्व जो हैं वो भी निकल रही होती हैं। और दे हैव वेल डेवलप आई एंड एंटीना, यानी कि इनकी वेल डेवलप, अभी तक हमने आईज कहीं नहीं पढ़ी थी, पिछले फाइलों में हम पढ़ के आए थे कि आइज़ हैं और उनमें लेंस भी डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे वेल डेवलप आइज़ हैं और एंटीना जो है वो प्रेजेंट है। दे इनकी जो लोकोमोशन है वो कैसे इनकी लोकोमोशन हो रही है, दे कैन स्विम, क्रॉल एंड फ्लाई। दे आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट जो हैं इस केस में डिफरेंट है। इनकी एग्जाम्पल जो हैं बेटे, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, माउथ, वैस्प, बीटल, ग्रासहोपर, क्रैब, लॉबस्टर, प्रान, श्रिम्प, क्रेफिश, स्पाइडर, टिक, माइट, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड एंड मेलीपीड्स आर द एग्जाम्पल्स। इतनी मैंने आपको बताया था ना, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, ऑफ इनवर्टिब्रेट। और इसीलिए इनकी एग्जाम्पल्स भी इतनी ज़्यादा आपको लिखी हुई है। कॉमन एग्जाम्पल्स आप सब इससे फैमिलियर हो। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो देखो ये क्लास, ये दो मैंने आपको शुरू में क्लासेस बताई थी ना इनकी, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की एग्जाम्पल आपको बताई हुई है वैस्प और ग्रासहोपर। वैस्प तो आम घर में फ्लाई कर रही होती है, ग्रासहोपर भी आप सबने देखा हुआ है। ये क्रस्टेशिया, ठीक है, क्लास है इनकी, जिसमें क्रेफिश और क्रैब है। फिर आपके पास ये ग्रासहोपर है, इसका जो है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो सारा दिखाया हुआ है। अगर आप लोग और करो बेटे, यहाँ पे ये भी आपने याद रखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ, आपको यहाँ पे इसकी 4 क्लासेस भी आपकी बुक में दी हुई हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा कंसिस्ट ऑफ 4 क्लासेस, हर क्लास के अलग मेंबर आपको दिखाए गए हैं। आपने एज इट इज़ याद करना है, आपको पता होना चाहिए कि इस फाइलम को हम लोग 4 क्लासेस में फर्दर डिवाइड करते हैं। क्लास क्रस्टेशिया, एजिया भी कह सकते हैं इसको। क्लास पहली कौन सी है, क्रस्ट एजिया। क्लास इंसेक्टा, क्लास आर्केनिडा, ये भी कह सकते हो अरेक्निडा, ARAC, अरेक्निडा। क्लास मैरीपोडा, मैराई या मैरियापोडा भी कह सकते हो, जिस तरह आप लोगों को इजी लगे हो, स्पेलिंग याद हो जाए, कोई इतनी बिग इशू नहीं है। क्लास मैरियापोडा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं क्लास क्रस्टेशिया के। इसकी 2 एग्जांपल्स आपको दी हुई है, एक दी है बेटे क्रेफिश और एक कौन सी दी हुई है आपको, क्रैब दी हुई है। क्लास इंसेक्टा पे आओ तो उसमें आपके पास वैस्प और ग्रासहोपर आते हैं। फिर अगर आप आओ अगली क्लास की तरफ, क्लास अरेक्निडा मैंने बताई है, अरेक्निडा, इसकी 2 एग्जांपल दी हुई हैं, स्पाइडर और माइट। फिर आपको अगली क्लास चौथी बताई हुई है, क्लास मैरियापोडा, ठीक है, इसकी 2 एग्जांपल, एक सेंटीपीड है और एक मेलीपीड है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये इनका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर है जो हम सारा पढ़ के आए हैं, इसको हम एक दफ़ा पढ़ते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर जो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है, विंग है, इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, ये फ्लाई करेगा। ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या बन गया, यहाँ पे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आ गई। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेंट्रल गैंग्लिया, जिसमें नर्व्स जो हैं हर सेगमेंट, ये सेगमेंट्स हैं बॉडी के, छोटी ये लाइंस लगी हुई हैं, हर सेगमेंट के अंदर नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव ट्यूब आपको नजर आ रही है, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, ट्रैकिया जो इनका रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। सेंट्रल गैंग्लिया जो है वो हेड रीजन पे प्रेजेंट है। कंपाउंड आइज है, और आइज के साथ एक स्ट्रक्चर आपको लग रहा है ये वाला नजर आ रहा है,
इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीना कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीना। और ये इसके डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स हैं बेटे। ये इनकी लेग्स हैं। क्लियर हो गया। दे कंसिस्ट 3 पेयर ऑफ लेग्स, यानी कि टोटल 6 लेग्स इनकी होती हैं। ये जर्नल बॉडी प्लान है, ठीक है। एक दफ़ा हम इनके मेन पॉइंट दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंने बताया कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। इसकी स्पीशीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे बल्कि लिखा भी हुआ, आर्थ्रोपोडा द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट, अबाउट 900,000 स्पीशीज, 2/3 ऑफ ऑल द नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर्थ्रोपोड, यानी कि अभी तक 900,000 स्पीशीज इनकी जो हैं वो आपको मिल चुकी हैं। और ये तमाम स्पीशीज जो बाकी फाइलम्स की हैं उनका 2/3 है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि इनकी एग्जांपल्स थी। एग्जांपल के बाद हमने क्या बता दिया था कि दे डिफरेंट हैबिटेट एंड डिफरेंट जगहों पे जो हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ स्विम करते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे कैन सिंपल सिलियोमेट्स, ठीक है। इनकी जो सिलियोम है वो रिड्यूस हो जाती है और सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगेंस्ट जो आ जाती है। और जो है इनकी बॉडी में जो है जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि रनिंग, क्रॉलिंग, स्विमिंग, कैप्चरिंग प्रे, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं और इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, माउथ में भी प्रेजेंट है, माउथ के पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड है। कुछ सेगमेंट बॉडी के फ्यूज होके एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, टैगमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, टैगमेटा। टैगमेटा कंसिस्ट ऑफ 3 बॉडी पार्ट्स, और 3 बॉडी पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं उसको, पूरे ऑर्गेनिज्म ही को, हेड में, थॉरस में एंड एब्डोमेन में। इनके दे हैव एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मैंने क्या बताया कि एक्सोस्केलेटन है विच इज़ नोन एज क्यूटिकल, जो कि एपिडर्मिस जो है वो सक्रीट कर रही है, ठीक है। और इनकी जो क्यूटिकल है वो किससे मिलके बनी होती है बेटे, काइटिन से मिलके बनी होती है। मैंने आपको इनके अंदर एक फिनोमेना बताया था, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है, एक फिजिकल चेंज आ रहे हैं फ्रॉम एग टू अडल्ट, यानी कि एग से लेकर अडल्ट तक पहुंचने में ये लोग अपनी बॉडी की डिफरेंट इनकी शेप्स बनती हैं। उस पूरे प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होता है कि इनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो बार बार शेड, यानी कि गिर जाती है, पुरानी नई एक्सोस्केलेटन बन जाती है, फिर गिर जाती है, फिर नई बन जाती है। और ये कितनी दफ़ा अपनी एक्सोस्केलेटन को जो है रीसक्रीट करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि एक्सोस्केलेटन को बनने को बार बार जो इसका प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं, ईडाइसिस कहते हैं, एक्डाइसिस कहते हैं, या क्या कहते हैं, एक्डाइसिस है बेटे। ईसी है ना, तो ये एक्डाइसिस कहते हैं, या इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड जो है वो सिंपल हीमोसीलियम के अंदर जो है वो फ्लो करता था। हीमोसील जो है ये इनकी एम्ब्रियोनिक एक कैविटी है, डेट इज़ ब्लास्टोसील, उससे जो है ये बनता है, ड्राइव होता है। ब्लड इनका कलरलेस है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो इनका ब्लड जो है वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा हीमोलिम्फ, लिम्फ कलरलेस होगा, ठीक है। जो इनका बेटे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वहाँ पे एक स्पेशल 8 ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। बहुत सारी ट्रैकियल ट्यूब जो हैं उनकी जो ओपनिंग है वो स्पेशल एक और स्ट्रक्चर है, यानी कि जो ट्रैकियल ट्यूब्स हैं वो कैसे ओपन हो रही हैं, उनकी ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्पायरल्स कहते हैं, ठीक है। और जो इक्वेटिक है, यानी कि जो वाटर में रहते हैं, वो रिस्पायर करते हैं गिल्स के जरिए। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ट्यूब लाइक है। एलिमेंट्री कैनाल को डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल जो हैं ये मिड गट और हाइंड गट के साथ जो है अटैच होती हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनका जो है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स मैंने बोला वर्ड, ये याद रखना है, किसके, सेरिब्रल गैंग्लिया, यानी कि ब्रेन के, जो कि हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। और उसमें से डबल वेंट्रल नर्व कोड निकलती है और जो कि हर सेगमेंट में जाती है। और हर वेंट्रल गैंग्लिया के अंदर से बेटे क्या निकलती हैं, डिफरेंट टाइप की नर्व्स निकलती हैं। क्लियर हो गया। दे हैव वेल डेवलप आई एंड एंटीना, ठीक है। दे कैन स्विम, क्रॉल एंड फ्लाई, और दे आर यूनिसेक्सुअल। फिर हमने क्या बताया था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को 4 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया था हमने। पहली क्लास कौन सी थी, क्लास क्रस्ट एजिया या क्रस्ट एशिया कह सकते हैं इसको। क्लास दूसरी कौन सी थी, क्लास इंसेक्टा। एजिया के जो है स्पीशीज कौन सी थी, क्रेफिश एंड क्रैब। इंसेक्टा में आपके पास क्या आया था, वैस्प एंड ग्रास ऊपर आ गया था। फिर आपकी नई अगली क्लास आई थी, क्लास
अरेक्निडा थी, उसमें कॉमन एग्जांपल आपकी कौन सी थी, माइट और स्पाइडर। फिर थी क्लास मायरियोपोडा, उसमें कौन सी एग्जांपल थी, सेंटीपीड एंड मेलीपीड। और यहाँ पे इनका बॉडी का जनरल स्ट्रक्चर था जो कि मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद इनकी ढेर सारी एग्जांपल जो हैं वो भी आपने कर ली थी। इन द एंड बेटे मैं आपको कुछ और इनकी फर्दर जो है एग्जांपल्स दिखाती हूँ, वो भी आप लोग देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से जो है ये क्लियर हो जाए कि इस फैमिली में आपकी कौन कौन सी एग्जाम्पल आती हैं। ये दिस इज़ नंबर 1। ये एग्जाम्पल आपको मैंने अभी बताई थी जब हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी, वहाँ पे हमने पढ़ी थी सेंटीपीड। दिस इज़ सेंटीपीड, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। दिस इज़ बटरफ्लाई, इससे तो आप लोग सब फैमिलियर हो, ठीक है। ये बटरफ्लाई है, ये भी बटरफ्लाई है। ये क्लास इंसेक्टा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, लेकिन ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखो तो ये बॉडी प्लान है, लेकिन ये कौन सा बॉडी प्लान है, ये आउटर। अभी जो बुक में हम पढ़ के आए हैं वो इनर पढ़ा ना, ये बेटे आउटर। अगर आप और करो तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये हेड रीजन है। दिस इज हेड रीजन। हेड रीजन के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है, कंपाउंड आइज प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये दो आपको नजर आ रहे हैं। दिस इज नॉन एज एंटीना। बेटे ये एंटीना है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, ये क्या है, ये एंटीना। ये क्या है, एंटीना। क्लियर हो गया। आइज है, कंपाउंड आइज प्रेजेंट है, और क्या है, एंटीना है। और ये जो आइज है ये किस रीजन पे, आइज और एंटीना किस रीजन पे प्रेजेंट है बेटे, हेड रीजन पे प्रेजेंट है। ये इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ मैं आपको। ये क्या चीज़ है, ये विंग्स है। इसका मतलब है इसके विंग्स है अगर इस इंसेक्ट के, तो ये फ्लाई कर सकता है, यानी कि इसकी लोकोमोशन थ्रू फ्लाई होगी। अगर आप ये देखो यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड है। बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में इसके डिवाइड, जैसे मैंने आपको बताया था, हेड, ये थॉरेक्स रीजन, और ये सारा का सारा नीचे वाला क्या है, एब्डोमेन। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। दिस इज टाइलस। ये क्या है, सर्कस है। ये इसकी जो है लेग्स हैं, लेग्स इनकी 6 लेग्स हैं, 3 पेयर्स हैं, ठीक है। ये इनको हम हाइंड लेग्स कहते हैं, दरमियान वाली को मिड लेग्स कहते हैं, और सबसे पहले वाली को हम लोग क्या कहते हैं, सामने वाली को 4 लेग्स कहते हैं। जो थॉरेक्स होता है उस थॉरेक्स को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रोथॉरेक्स, मीजो एंड मेटा। और बाकी सारा का सारा जो सेगमेंटेड है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इसको हम कह देते हैं एब्डोमेन। ये क्या हो गया, ये इनकी बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम एक क्लास मैंने आपको बाद में बताई थी, हम चौथी क्लास में भी, वहाँ पे मैंने आपको स्पाइडर की एग्जांपल खाई थी। दिस इज स्पाइडर, ठीक है, ये भी घरों में अक्सर नजर आ जाता है। अगर ये देखो ना बेटे, तो ये जनरल बॉडी प्लान है। हमने बताया था ना कि इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एब्डोमेन, थॉरेक्स एंड हेड रीजन। दिस इज हेड रीजन, ये आपको पॉइंट करके बताया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थॉरेक्स रीजन है, और यहाँ से लेकर एंड तक ये क्या है, ये एब्डोमेन है। क्या है, ये एब्डोमेन है। ये आपको डिवीजन दिखाई हुई है इनकी बॉडी की बॉडी को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें आपको विंग्स भी नजर आ रहे हैं, एंटीना भी नजर आ रहे हैं, और लेग्स भी नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट आप आओ तो ये आपके पास एग्जाम्पल है किसकी, कॉकरोच की, फाइलम यानी कि आर्थ्रोपोडा, और क्लास कौन सी है, इंसेक्टा है। नेक्स्ट आप आते हो, दिस इज मॉस्किटो, ठीक है। ये तो इससे तो सारी फैमिलियर है। ये वो मॉस्किटो है जो कि मलेरिया काज करता है। फिर ये सिंपल जर्नल हाउस फ्लाई जो हर घर में जो है वो पाई जाती है, हाउस फ्लाई, ये भी क्लास इंसेक्टा से जो है वो बिलोंग करती है। नेक्स्ट आप आते हैं, दिस इज कॉमन जो है, ये भी फ्लाई है जो कि हनी बनाती है, ठीक है। ये आपके पास आता है क्रैब, ओके। दिस इज आप इसको क्या कहेंगे, लेडी बर्ड, ठीक है, लेडी बर्ड भी कहते हैं कुछ लोग इसको लेडी बर्ड भी कहते हैं। वैसे ये वो है, लेडी बर्ड कहते हैं इसको, ठीक है, कॉमन नेम इसका लेडी बर्ड है। हाँ, लेडी बर्ड बेटे इसका कॉमन नाम है। और ये जो है ना, ये प्लांट्स के ऊपर होती है, और ये प्लांट्स का जो लीव है उसकी आउटर सरफेस जो है बिल्कुल खा जाती है। प्लांट का जो एपिडर्मिस है, ग्रीन पोर्शन है, वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और प्लांट लीव जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वेन्स रह जाती है। बहुत तेज़ी से लीव को जो है वो ख़त्म करती है, और इसका जो नाम है, कॉमन नेम क्या है, लेडी बर्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट आप आते हो, ये दिस इज ड्रैगन फ्लाई, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ड्रैगन फ्लाई से भी आप सब लोग फैमिलियर हो, कॉमन आपको बाहर गार्डन में जो है वो नज़र आते हैं, और इसके कलर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा इसके कलर जो हैं, कलर्स में ड्रैगन फ्लाई जो है वो अवेलेबल होती है। ये भी देखें, ये भी ड्रैगन फ्लाई है, लेकिन अब इसमें और उसमें कलर वेरिएशन आ रही है, रेड कलर में, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई भी जो है आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा ही की जो है स्पीशी है। एक और इंसेक्ट है जो अक्सर मेरे ख्याल से सबने तो नहीं, लेकिन कुछ ने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, इसको वॉकिंग स्टिक इसका नाम है, ठीक है। स्टिक की जैसा होता है, इसीलिए इसका कॉमन नाम जो है वो वॉकिंग स्टिक रख दिया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, और ये भी वॉकिंग स्टिक ही की जो है आपको पिक्चर नज़र आ रही है स्क्रीन पे।
नेक्स्ट आप आते हो वेरी कॉमन एग्जाम्पल, सारे बच्चों ने गैस कर ली होगी, दिस इज़ ग्रास होपर। ग्रास होपर जो है बड़ी कॉमन एग्जांपल है। इसमें तमाम के तमाम जितने मैंने भी सिस्टम पढ़ाया वो भी इसमें थे। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स थी इसमें, और इसमें जो है ये हेड है, ये थॉरक्स है, ये सारा का सारा जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सेगमेंट्स नज़र, एब्डोमेन प्रेजेंट है, ठीक है, विंग्स प्रेजेंट है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा, इसकी स्पीशी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, कलर वेरिएशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये भी ग्रास होपर है, वो किसी और कलर में था, ये ग्रीन कलर में है, ठीक है। ये भी ग्रास ऊपर है बेटे, देखो मैंने कहा था ना कि इसमें कलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ये भी ग्रास ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप पिक्चर अगर देखो तो अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था वो मैंने क्या दिखाया था, आउटर स्ट्रक्चर यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, इंटरनल है बेटे। यहाँ पे अगर आप ये देखें, आपको यहाँ पे ये हार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये क्या है, ये ब्लड वेजल्स हैं, और यहाँ पे आपके मैंने क्या कहा था, हाइंड गार्ड और मिड गार्ड के साथ, ये हाइंड गार्ड और मिड गार्ड है, इसके साथ ये मिड गार्ड, ठीक है। और मैंने बताया था कि इन दोनों के दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये वही ट्यूब्स है, एनस है, रेक्टम है, यहाँ पे टेस्टिस जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये स्लाइवरी ग्लैंड है, एंटीना है, और ये हेड रीजन है। हेड के अंदर क्या था, ब्रेन था, ब्रेन के अंदर क्या था आपको पता, गैंग्लियन थे जो वो प्रेजेंट थे, और एक्सोस्केलेटन है, मिड गट, क्रॉप के अंदर जो है फूड जो है वो स्टोर होती है, देन आगे फर्दर वो डाइजेशन के लिए मूव करती है, ठीक है। और ये सारा जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने इसका देख लिया। अगले स्ट्रक्चर पे हम जाते हैं बेटे। मैंने आपको, जब मैं आपको पढ़ा रही थी बेटे फाइलम आर्थ्रोपोडा मैं आपको पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे मैंने एक प्रोसेस बताया था, मेटामॉर्फोसिस। मैंने क्या कहा था, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जो कि आर्थ्रोपोडा में, इससे पहले किसी फाइलम में हमें नज़र नहीं आता। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एग से अडल्ट में चेंज होने से पहले जो है वो डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट फिजिकल फेजेस हैं उनमें जो है चेंज होता रहता है। यहाँ पे बेटे डायग्राम बनी हुई है, दो तरह के दिखाए हुए हैं। एक होती है मेटामॉर्फोसिस जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट। ये कंप्लीट है। पहले आपके पास देखो क्या आया, एग। एग के बाद क्या चीज़ बन गई, आपके पास बन गया लार्वा। एग किस में कन्वर्ट हुआ, लार्वा में। लार्वा किस में कन्वर्ट हुआ, प्यूपा में। और प्यूपा किस में कन्वर्ट हो गया, अडल्ट बटरफ्लाई में। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, एग है। एग के बाद ये डिफरेंट टाइप के ग्रास होपर ही बन रहे हैं। अगर आप पहचानो तो ये ग्रास होपर जैसे ही हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इनका साइज छोटा है। तो इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये जो बने हैं इनको हम क्या कहते हैं, नेव कहते हैं। और नेव के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, अडल्ट में। और ये पूरा प्रोसेस क्या है, दिस इज मेटामॉर्फोसिस, जो कि मैंने आपको समझाया भी था, बताया भी था। ये अब आपको उसकी डायग्राम देख लो तो मज़ीद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे पहले एग थे, एग के बाद आपके पास लार्वा आया, फिर प्यूपा, फिर आपके पास स्मॉल, एंड देन आपके पास अडल्ट बटरफ्लाई जो है वो आ गई। और वहाँ पे हमने बताया था कि ये अपना एक्सोस्केलेटन बार बार शेड करते हैं और नया बनाते हैं। मैंने बताया था ना वहाँ पे एक प्रोसेस, बेटे ये वही प्रोसेस है। ये देखो ये रिमूव कर रहे हैं, ये और रिमूव हुआ, और रिमूव हुआ, और रिमूव हुआ। ये बार बार उनका स्केलेटन जो है वो रिमूव हो रहा है। ये वही साइकिल की फॉर्म में ड्रा हुआ है। एग है, एग के बाद कैटरपिलर बना, फिर आपके पास कारसेलिसिस बन गया, अडल्ट इमर्ज हो रहा है, यानी कि उसमें से अपने एक्सोस्केलेटन में से निकल के अडल्ट बटरफ्लाई जो है आपके पास आ जाती है। ये क्राइसैलिस है, ठीक है। ये बटरफ्लाई ही की एक मेटामॉर्फो इसकी जो है फॉर्म है। अच्छा, ये जो मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ा ये बेटे बटरफ्लाई का था। जो अगला मेटामॉर्फोसिस आपको नजर आ रहा है ये और इंसेक्ट है, ये बटरफ्लाई नहीं है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसने पहले एग ले किया, फिर आपके पास यंग लार्वा आया, मिच्योर लार्वा, फिर आपके पास प्यूपा। देखो कितनी डिफरेंट शेप है प्यूपा की अडल्ट से, और प्यूपा से फिर क्या बन गया, आपके पास अडल्ट इंसेक्ट बन गया। ये तो थी कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हमने की किसकी, फाइलम आर्थ्रोपोडा की। फाइलम आर्थ्रोपोडा बेटे कंप्लीट हो गया है। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम है, फाइलम इनवर्टिब्रेट्स का, किंगडम एनिमिलिया का। आपने इसको अच्छी तरह से करना है। बहुत ज़्यादा इसके करैक्टरिस्टिक जितने भी थे, मेन फीचर्स थे, सारे मैंने आपको बताए। फिर इसकी 4 क्लासेस हमने की, हर क्लास की अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको बताई। इन द एंड फर्दर मोर एग्जाम्पल्स मैंने जो है आपको बताई और दिखाई, ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी आ जाए, फर्दर क्लियर हो जाए कि कौन कौन से इंसेक्ट जो हैं वो इस फाइलम से बिलोंग करते हैं।
तो ऑलमोस्ट जितने भी इंसेक्ट आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहे होते हैं ज़्यादातर इसी फाइलम से जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। इसके साथ ही बेटे मैं यहीं पे अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट फाइलम मकाइनोडर्मेटा जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे मैं अपना टॉपिक जो है वो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।